हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे जनरल ज्योग्राफी की। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटूज़। द इंडियन पेनिनसुला वॉज फॉर्म्ड अराउंड 3600 मिलियन ईयर्स अगो. In the Carboniferous period, it was a part of Gondwana land. In the Carboniferous period, coal was formed in the Damodar, Son, Mahanadi, Vardha and Godavari basins, whereas in Cretaceous period, bulk of volcanic eruptions lead to the formation of Deccan Traps. क्या कहा गया है प्लेटूज के बारे में? The Indian peninsula was formed around 3600 million years ago. In the Carboniferous period, it was a part of Gondwana land. In the Carboniferous period, coal was formed in the Damodar, Son, Mahanadi, Vardha and Godavari basins, whereas in Cretaceous period, bulk of volcanic eruptions lead to the formation of Deccan Traps. The Deccan Plateau is a part of Indian Shield. The Deccan Plateau is a part of Indian Shield. Deccan Plateau is made up of basaltic lava. Deccan Plateau is made up of basaltic lava. The Deccan Trap was started to form approximately 66.25 billion years ago. इसका निर्माण होना कब स्टार्ट हुआ था? The Deccan Trap was started to form approximately 66.25 million years ago. The peninsular plateau consists of both broad and shallow valleys and round top hills. ठीक है, The peninsular plateau consists of both broad and shallow valleys and round top hills. The peninsular plateau is basically divided into two parts. The central highland. ठीक है, The peninsular plateau is basically divided into two parts है. The central highlands and the Deccan Plateau. The central highland and the Deccan Plateau. The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. Central Highlands किसे कहते हैं? The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Central Highlands are broad towards the west and start narrowing down towards the east. The Central Highlands are broad towards the west and start narrowing down towards the east. The eastward extension of the Central Highlands is sometimes locally known as Bundelkhand and Baghelkhand. The eastward extension of the Central Highlands is sometimes locally known as Bundelkhand and Baghelkhand. ठीक है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है वो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड का ही ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है. ठीक है, इसके बाद ये इंडिया का मैप दिया गया है जिसमें कि प्लेटूज ऑफ इंडिया दिखाए गए हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर हम देख रहे हैं लद्दाख प्लेटू देख रहे हैं. लद्दाख में इधर है मेघालयन प्लेटू है और सेंटर में जो कि सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे थे हम, मालवा प्लेटू है. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड के आसपास. काठियावाड़ प्लेटू गुजरात में है. महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू. ठीक है, दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़ का. और उसके बाद है डेक्कन प्लेटू. ये पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया का जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक, ये क्या है? डेक्कन प्लेटू का एरिया है. ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं. द रिवर दामोदर ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेटू. The river Damodar drains the Chota Nagpur Plateau, which is a part of Central Highlands. The Chota Nagpur Plateau extends from Ranchi in the Jharkhand to Hazaribagh, Santhal Pargana, Palamu, Dhanbad, Singhbhum district and Purulia district in West Bengal, covering an area of 87,239 square kilometer. ये क्या बताया गया है कि द रिवर दामोदर ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स. द छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम रांची इन झारखंड टू हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ 87,239 square kilometer. The Chota Nagpur Plateau comprises of various other plateaus of different heights in the central western part of the Chota Nagpur Plateau part
Chota Nagpur Plateau part land is found, which has maximum height of 1100 meters. All around this plateau, spans are found and sharp break in slopes are marked by steep scarps. The Central Highlands consist of rivers like Chambal, Sindh, Betwa and Keen, which flows from the southwest to northeast, thus being a proving factor of the slope of the region. The Central Highlands consist of rivers like Chambal, Sindh, Betwa and Keen, which flows from southwest to northeast, thus being a proving factor of the slope of the region. Next है मालवा प्लेटू. द मालवा प्लेटू जिसकी लेंथ है 530 किलोमीटर 530 किलोमीटर और ब्रेड्थ है इसकी 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर. मालवा प्लेटू कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. जो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू का जो क्या करता है, इट्स बॉर्डर्स आर डिटरमाइंड, जो इस प्लेटू का जो बॉर्डर है आर डिटरमाइंड बाय अरावली इन द नॉर्थ, विंध्या रीजन इन द साउथ एंड बुंदेलखंड प्लेटू इन द ईस्ट. ये सब इसका बॉर्डर डिसाइड करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. ठीक है. द मालवा प्लेटू जिसकी लेंथ कितनी है 530 किलोमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 390 किलोमीटर है. ये कितना एरिया कवर करता है 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है. और मालवा प्लेटू का बॉर्डर्स डिटरमाइन होता है नॉर्थ में अरावली से और साउथ में विंध्या रेंज बॉर्डर बनाती है, यानी डिसाइड करती है इसकी बाउंड्रीज़ को बुंदेलखंड प्लेटूज इन द ईस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू इज़ ए ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म. डेक्कन प्लेटू कैसा है, ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है, सिचुएटेड साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. ठीक है. जो कि जो रिवर नर्मदा है उसके साउथ में है. द रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड व्यूज इन द नॉर्थ आर सतपुरा रेंज, वाइल महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम कि जो डेक्कन प्लेटू है इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है. ठीक है. जो डेक्कन प्लेटू की जो रेंजेज हैं फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड व्यूज इन द नॉर्थ आर सतपुरा रेंज, वाइल महादेव. ये सतपुरा रेंज में ही आता है, ये इसका एक्सटेंशन है. ठीक है. सतपुरा रेंज, वाइल महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन. द डेक्कन ट्रैप वेयर ब्लैक सॉइल और रेगुड इज फाउंड विच वॉज formed as a result of the weathering of lava basalt obtained by volcanic eruptions. Aravalli Range is found in the northwestern part of the peninsular plateau. The Aravalli Range is an eroded stub of ancient mountains and is the oldest range of fold mountains in India. A part of peninsular plateau is also found in the northeastern part of our country. A part of peninsular plateau is also found in the northeastern part of our country. Locally, they are called the Meghalaya Plateau, Karbi Anglong Plateau, and the North Kachar Hills. This northeastern part of the peninsular plateau got separated from the mainland by Malda Gap as a result of faulting. There are three important hill complexes in the Meghalaya Plateau named Garo, Khasi and Jaintia Hills respectively. द दंडकारण्य रीजन ऑफ उड़ीसा. दंडकारण्य रीजन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी स्टेट्स में दंडकारण्य रीजन फैला हुआ है. ठीक है. जो दंडकारण्य का जो प्लेटू है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में एंड आंध्र प्रदेश में. और इसका टोटल एरिया कितना है 89,078 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. दंडकारण्य रीजन ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश आर स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 89,078 स्क्वायर किलोमीटर. तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं प्लेटूज से रिलेटेड. पहला क्वेश्चन है बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेटू वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. क्या पूछा गया है कि बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेटूज वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. तो इसका आंसर होगा क्रिटेशियस पीरियड. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए क्रिटेशियस पीरियड.
The origin of the rocks of peninsular India is about 3600 million years ago. Before the Carboniferous period, ठीक है, बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड इट वॉज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है, किसकी बात हो रही है? पेनिनसुलर जो इंडिया की जो रॉक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो उनका ओरिजिन होता है वो कब होता है? अबाउट 3600 million years ago. The origin of rocks of peninsular India is about 3600 million years ago. Before the Carboniferous period, it was a part of Gondwana land. It was during the Carboniferous period that the coal was formed in the Damodar, Son, Mahanadi, Vardha and Godavari basins. During the Cretaceous period, large-scale volcanicity produced the Deccan Trap, the lava plateau of India. Deccan Trap को क्या कहा जाता है? The lava plateau of India भी कहा जाता है. Comprising lava sheets of several thousand meters in depth. The Deccan Trap originated about 66.25 million years ago. Deccan Trap originated about 66.25 million years ago. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया था? Basaltic lava rocks over Indian Deccan Plateau were formed in which of the following period? इसका आंसर है क्रिटेशियस पीरियड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. मेघालय प्लेटू इज़ ए पार्ट ऑफ. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, मेघालय प्लेटू इज़ ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेटू है. इज़ ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक है, मेघालय प्लेटू इज़ ए पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर बी पेनिनसुलर प्लेटू. क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. Meghalaya Plateau is an extension of the Indian Peninsular Plateau. Meghalaya Plateau was separated from the Peninsular Plateau by Malda Gap. Peninsular Plateau is triangular in shape and it extends from plains of Uttar Pradesh and Bihar towards south and encompasses whole of peninsula. जो मेघालय प्लेटू है, मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू. मेघालय प्लेटू वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू बाय मालदा गैप. Peninsular Plateau is triangular in shape. It extends from plains of Uttar Pradesh and Bihar towards south and encompasses whole of the peninsula. क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू. ठीक है, तो इसका आंसर है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है. गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों दिया गया है जो कि मेघालय प्लेटू में ही आता है, जबकि जो भुवन हिल्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भुवन हिल्स क्या है? वो मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है. ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया आर पार्ट्स ऑफ मेघालय प्लेटू, वेरियाज भुवन हिल्स इज़ ए पार्ट ऑफ मीज़ो हिल्स. भुवन हिल्स किसका पार्ट है? भुवन हिल्स पार्ट है मीज़ो हिल्स का. ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मेघालय प्लेटू की बात हो रही है. तो मेघालय प्लेटू में कौन कौन सी हिल रेंजेस आएंगी? गारो, खासी, जयंतिया. और जो भुवन हिल्स है ये किसकी रेंज है? भुवन हिल्स है मीज़ो हिल्स की रेंज है. ठीक है, भुवन हिल्स इज़ ए पार्ट ऑफ मीज़ो हिल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग. इसका आंसर होगा सिनोजॉइक एरा. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड इन सिनोजॉइक एरा. हिमालयन रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड इन सिनोजॉइक एरा. हिमालयन रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. वाई इज़ धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू. तो इसका आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. धनबाद comes under Chota Nagpur Plateau, which is famous for coal mining and has some of the largest mines in India. Red soil is found in most of its region, which is not useful for agriculture. Availability of coal, iron, mica, etc. is not a good reason for population density. ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वाई इज़ धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू. तो इसमें क्या बताया गया है कि क्या ऐसा क्या रीज़न है. ठीक है, तो इसका आंसर है कि डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है,
क्या पढ़ा हमने इसमें कि धनबाद कम्स अंडर द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ फेमस फॉर द कोल माइनिंग एंड हैज सम ऑफ द लार्जेस्ट माइंस इन इंडिया. रेड सॉइल इज फाउंड in most of its region which is not useful for agriculture. Availability of coal, iron, mica etc is not a good reason for population density. ठीक है, ये कहा गया है. उसके बाद नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू इज़ ए फ्रंट स्लोपिंग. ऑप्शन नंबर ए इस ऐसे दिया गया है. तो छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? इज़ ए फ्रंट स्लोपिंग. क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स मच ऑफ झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छोटा छत्तीसगढ़. ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसकी बात कर रहे हैं कि ये कवर करता है कौन कौन सा एरिया? मच ऑफ झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, द छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 87,239 स्क्वायर किलोमीटर. छोटा नागपुर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेटूज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एलिवेशंस ऑन सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन. द पार्ट लेंथ इज एक्सटेंडेड whose height is about 1100 meter. In this, the sharp break in slope is marked by steep scarps. Hence, it is a front sloping है. ठीक है, क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि छोटा नागपुर प्लेटू किस प्रकार का है? छोटा नागपुर प्लेटू इज ए फ्रंट स्लोपिंग. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. अलबामा हिल लोकेटेड एट. अलबामा हिल कहाँ पर है? द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड. ठीक है, अलबामा हिल कहाँ पर है? अलबामा हिल लोकेटेड एट द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड. अलबामा हिल इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द मैप गिवन बिलो. इसमें द प्लेस मार्क्ड A, B, C एंड D इन द मैप आर. इनमें जो ये मैप है इसमें बताना है कि जो ये रीज़न दिया गया है A, B, C, D ये कौन कौन से रीज़न हैं इसको हमने बताना है. तो देखेंगे हम. सबसे पहले इसमें है जो सबसे पहले ए है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. ए होगा रिफ्ट वैली रीजन, बी होगा छत्तीसगढ़ प्लेन, फिर सी होगा छोटा नागपुर प्लेटू और उसके बाद क्या है? डी क्या है? रेन शेडो रीजन है. द प्लेस मार्क्ड ए इन द मैप इज़ नर्मदा. ठीक है, जो ए यहाँ पे दिखाया गया है ए क्या शो करता है? द प्लेस मार्क्ड ए इन द मैप इज़ नर्मदा एंड तापी रिवर्स रिफ्ट वैली रीजन. ठीक है, द प्लेस मार्क्ड बी क्या बताता है? छत्तीसगढ़ प्लेन विच इज़ ड्रेन्ड मोस्टली बाय महानदी रिवर. ठीक है, द प्लेस मार्क्ड सी इज़ छोटा नागपुर प्लेटू. जो सी से मार्क किया गया है सी वो किसको डिनोट करता है? छोटा नागपुर प्लेटू को डिनोट करता है. द प्लेस मार्क्ड डी जो बताया गया है डी किस चीज़ को दिखा रहा है? ए रेन शेडो एरिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो रेन शेडो एरिया है उसको दिखा रहा है डी. ठीक है, तो यहाँ पर है मैप को भी देख लीजिए क्या है ए पे. ए हमने क्या कहा? जो रिफ्ट वैलीज़ है नर्मदा की. ठीक है, नर्मदा और जो ताप्ती रिवर्स है ए दिखाता है. ठीक है, रिफ्ट वैली रीजन को. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बी दर्शाता है जो छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है विच इज़ ड्रेन्ड मोस्टली बाय महानदी रिवर. ठीक है, जो बी है वो क्या दिखा रहा है? छत्तीसगढ़ का प्लेन दिखा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद सी क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू है. ठीक है, और जो डी है डी क्या है? डी है रेन शेडो एरिया. क्या ये वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया है. तो इसको हमने देख लिया. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? सबसे पहले ए है रिफ्ट वैली रीजन, बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ प्लेन हो जाएगा, सी है छोटा नागपुर प्लेटू और डी हो जाएगा रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट. ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए. एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. द प्लेस मार्क्ड ए इन द मैप इज़ नर्मदा एंड तापी रिवर्स रिफ्ट वैली रीजन. The place marked B is the Chhattisgarh plain which is drained mostly by Mahanadi river. The place marked C is Chota Nagpur plateau. The place marked D is a rain shadow area which is a part of Western Ghat. इसके बाद next question है question number 9. Which one of the following district
डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है रोहतास। ठीक है, मुंगेर, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं मुंगेर, जामुई एंड नावादा इन साउथ ईस्टर्न बिहार आर पार्ट ऑफ धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जबकि जो रोहतास है, रोहतास इज़ अ पार्ट ऑफ विंध्यन रॉक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, रोहतास किसका पार्ट है? रोहतास पार्ट है विंध्यन रॉक्स का। ठीक है, विंध्यन रॉक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का। और जो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के पार्ट कौन कौन हैं? धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के पार्ट हैं मुंगेर, जामुई एंड नावादा इन द साउथ ईस्टर्न बिहार। ठीक है, ये सभी धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का पार्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास नहीं आता है, ठीक है, धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, बल्कि जो मुंगेर है, मुंगेर, जामुई और नावादा, ये तीनों आते हैं, जो कि कहाँ है? साउथ ईस्टर्न बिहार में है, और ये पार्ट है धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का। और रोहतास किसका पार्ट है? रोहतास इज़ अ पार्ट ऑफ विंध्यन रॉक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज? कौन सा प्लेटू अरावली और विंध्या रेंज के बीच में आता है? मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर विद ए लेंथ ऑफ 530 किलोमीटर एंड ए विड्थ ऑफ 390 किलोमीटर. Its northern end is determined by Aravali, southern end by Vindhya range and eastern border by बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, जो मालवा प्लेटू है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रीजन? तो इसका आंसर है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर विद ए लेंथ ऑफ 530 किलोमीटर एंड ए विड्थ ऑफ 390 किलोमीटर. मालदा प्लेटू का जो नॉर्दर्न एंड है इज डिटरमाइंड बाय अरावली, साउदर्न एंड बाय विंध्यन रेंज एंड ईस्टर्न बॉर्डर बाय बुंदेलखंड प्लेटू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. दंडकारण्य लाइज इन, अभी हमने पढ़ा था दंडकारण्य कहाँ कहाँ लाई करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्रा. ठीक है, इनमें लाई करता है. तो ऑप्शन में से देखना है, तो दंडकारण्य लाइज इन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. दंडकारण्य रीजन ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ अबाउट 89,078 स्क्वायर किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. कितने स्टेट्स में आता है? स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्रा, 5 स्टेट्स में इसका एक्सपेंशन है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, वैसे नॉर्मली हम छत्तीसगढ़ का रीज़न ध्यान रखते हैं दंडकारण्य के नाम से, लेकिन उसमें उड़ीसा भी आता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा भी आते हैं. ठीक है, ये सब टोटल 5 स्टेट्स आते हैं दंडकारण्य रीजन के अंतर्गत. स्टेट ऑफ उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है. ठीक है, द दंडकारण्य रीजन एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 480 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 320 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, दंडकारण्य रीजन कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 89,078 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन 5 स्टेट्स में ऑक्यूपाई करता है. कौन कौन से स्टेट हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है. और दिस रीजन एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 480 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 320 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड? तो कौन सा, छत्तीसगढ़ कौन से रीजन में आता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ क्या है? हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट. ठीक है, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू है उसका एक पार्ट है. ठीक है, तो इसका है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड? सेंट्रल पार्ट में है. दंडकारण्य इज ए पार्ट ऑफ साउथ इंडियाज पेनिनसुलर
प्लेटू। दंडकारण्य क्या है? दंडकारण्य इज ए पार्ट ऑफ साउथ इंडियाज पेनिनसुलर प्लेटू। साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका पार्ट है दंडकारण्य। क्योंकि देखिए कहाँ से फैला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है साउथ इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू का ये एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 89,078 स्क्वायर किलोमीटर इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन से पार्ट में है इंडिया के, तो हम कहेंगे सेंट्रल पार्ट में है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्लेटूज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोस्टल रीजन्स को पढ़ेंगे इंडिया के, ठीक है, जिसमें कि हम इंडियन कोस्ट लाइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।